Language is the way of communication. Okay? That's the one. And communication? Define language and define communication. Define both separately. That's it. मैं नहीं बोलना चाहता. अच्छा, ये नहीं बोलना चाहता. Yes, please come. Thank you, thank you. Language. How similar and how different? Communication is basically exchange of thoughts, and language is in what we do talk about. Means in Hindi or in English or any other language. In communication, we basically exchange our thoughts to other. Like I am here talking with my ma'am. Ma'am is exchanging her thought, and I am exchanging my thought. That is communication. And in language, basically, in which language we are speaking, like Hindi, English, Spanish, or any other. Thank you. Confused? Little bit. Thank you, ma'am. Confusion and curiosity will lead you to knowledge. जब तक आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना, आप किसी मसले का हल नहीं जान पाएंगे. Are there any other answers for what is language and communication? Yeah. Okay. Language is a set of rules by which we communicate with each other. Whether it's English, Hindi, any language. हिंदी में बोलते हैं तो सेट रूल है, ग्रामर रूल्स है. लैंग्वेज मीन्स ग्रामर, द रूल्स विच वी यूज टू स्पीक. वी कैन नॉट यूज जंबल सेंटेंसेस. लाइक व्हाट इज अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस क्या है? पढ़े होंगे स्कूल में. ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस. वो भी बता रहे सेंटेंस वो है, वाक्य वो है जो कि शब्दों का समूह है, जो कि एक थॉट को कंप्लीट सेंस बता रहा है. बेस पेपर की नहीं, जैसे कि टेबल, चेयर, बॉयज, गर्ल्स, सिटिंग, रिच क्लास, टीचर. No. Is it a sentence? No. It does not make sense. So we need language. यहाँ पर हम लोग को लैंग्वेज की जरूरत है. There has to be a subject. There has to be a verb. There has to be object. Subject, verb plus object equals a sentence, right? तो ये है language. ये है, in language we use set of rules. तो language कुछ नहीं है. Language is a set of rules through which we communicate. And language is the only one who uses language. Only one group uses language. आप बता सकते हैं कौन सा ग्रुप लैंग्वेज यूज करता है? सोचो सोचो. थिंकिंग क्लास है, क्रिएटिव क्लास है, क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव थिंकिंग. कौन से ग्रुप में ऑन दिस अर्थ which group uses language? Human. Exactly, very good. So language is for higher order. अब ये higher order क्या होता है भाई? Human beings. Of course, human beings use language. But what about the animal kingdom? वो लोग communicate करते हैं क्या? नहीं करते हैं. Yes, ma'am, करते हैं. करते हैं. I have a pet dog and she communicates. When she is happy, she will wag her tail. When she is angry, she will growl. वो communicate करते हैं ना? They are communicating. Yes. किसके पास pet dog है, pet cat है, pet parrot है? किसके पास है ना? उसके भाषा समझते हो तुम? क्या बोलना चाह रहा है? नहीं. अभी तो आई तो उसके लिए बहुत परेशानी होगी. कुछ बोलेगी तुम समझोगे नहीं. So the animal kingdom also communicates. They do not have language.
उनके पास लैंग्वेज नहीं है, but then they are also communicating. Can you communicate without the use of words? Yes. Like इशारे इशारे में बात कर सकते। आप अगर डिफाइन करेंगे कम्युनिकेशन वर्बल होता है या नॉन वर्बल। लेट्स टॉक अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल क्या होता है? VERBAL, प्लीज राइट दैट डाउन, बिकॉज ये आपको फाइनल ईयर तक क्वेश्चन आंसर होता रहेगा, MCQ होता रहेगा। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल क्या है? तो व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन? VERBAL, verbal. Verbal communication and non-verbal communication. You can categorize communication into verbal and non-verbal. What is verbal communication? Anybody? Any idea? कि verbal क्या है? And how can you separate this from non-verbal? I believe आप लोग AKU के हैं ना? Anybody from TPU? Okay. Everybody should know कि verbal क्या होता है, non-verbal क्या होता है. Now back to my question. What is verbal communication? Speaking. हाँ बोलो. Come here and speak. I would like your answers to. Verbal Come here, take the microphone. This is also part of the training that you speak on the mic. वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें हम वर्ड का यूज करते हैं, शब्द का यूज करते हैं। और नॉन वर्बल है जैसे हम टीवी डिबेट में देखते हैं, कोई उधर बोल रहा है और दूसरा कोई जो है वो हाथ से समझा रहा है, जो नहीं सुन पा रहा है या कुछ नहीं कर पा रहा है, उसको वो हाथ से भी समझा देता है और वो दूसरा आदमी वो सारी बातों को समझता है जो एक सुनने वाला आदमी समझता है। उसमें कोई वर्ड का यूज नहीं हो रहा है, उसे नॉन वर्बल कहते हैं। कितने लोग, how many people agree with him कि सही बोल रहा है? कितने लोगों को लग रहा है कि सही नहीं बोल रही है? अच्छा, प्लीज रेज योर हैंड्स। कितने लोगों को लग रहा है कि सही नहीं बोल रहा है? तुम सब में हाथ कर रहा हो, बोलने वाले में भी नहीं बोलने पे सही बोल रहा है। ये बोल रहा है कि सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। ठीक है, तुमको भी लग रहा है कि गलत बोल रहा है? नहीं, सही बोल रहा सही है। बोल रहा है। कितने लोगों को लग रहा है कि सही नहीं बोल रहा है? तुमको लग रहा है सही नहीं है, तो सही क्या है? तो बताओ। सही सही अब सही भी नहीं भी ना, सही नहीं है और सही और नहीं, सही नहीं है पे डिबेट चल रहा है। GD क्लास नहीं है भाई, so it's definitely not a GD class, but हाँ, that is a wonderful answer and a very thought provoking, and I am really amazed that from bridge class this answer is coming. इसका जवाब सही है। Verbal means words. Thank you so much. नाम क्या है तुम्हारा? उत्कर्ष। Are you from BB or BCA? BBA। Very good. So verbal का मतलब होता है words. Verbal का मतलब ये नहीं है जो oral बोल रहे हैं या हम बोल रहे हैं अभी, ये verbal हुआ, और जो हम जो लिखेंगे वो हो गया नॉन वर्बल। ये भी चल रहा है दिमाग में क्या? नो मैम। नहीं ना। तो जो वर्ड्स यूज करते हैं हम लोग, वर्बल मीन्स यूजिंग वर्ड्स, या तो आप बोल के बोल रहे हैं, वर्ड्स यूज कर रहे हैं, या आप लिख के कर रहे हैं। SMS, मैसेजेस, ईमेल्स, रिटन भी वर्बल हो सकता है एंड वर्बल ऑरल भी हो सकता है। एंड व्हाट इज नॉन वर्बल? When we are not using words, for example, facial expressions, body language. What is body language? कोई ऐसे खड़ा है, what is his body language?
क्या बता रहे? अगर मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं क्लास में आके मैं ऐसे खड़ी, क्या लग रहा है ऐसे? क्या लग रहा है? थिंकिंग, टायर्ड। नो, तो बॉडी लैंग्वेज बताता है आपकी कहानी, आपको शब्दों की जरूरत नहीं है। जैसे तुम क्रिकेट खेलने जा रहे हो, मैच है, क्रिकेट खेलना है, ऑल सेट है पूरा, ऑल वाइट वाइट। कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं इसमें यहाँ पे? गुड, वेरी गुड। तो क्रिकेट टीम बनेगी समझ में, सिविल स्पोर्ट्स में क्रिकेट मैच हुआ था, ऑल द 4 ब्रांचेस में, मैं बोलता। तो हाँ, मैं बता रही थी क्रिकेट खेले जा रहे हो, यूनिफॉर्म वगैरह सब सही है, किट्स रख लिया है, फ्रेंड्स कॉल कर रहे हैं कि वेयर आर यू, जल्दी आओ। आपके जैसे फादर आते हैं और बोलते हैं कहीं नहीं जाना है, आप बोलते तो नहीं है, लेकिन आपका मूड, आपका एक्सप्रेशन, आपका चेहरा, आप क्या करते हैं? आप कमरे में जाते हैं, किट को पटकते हैं, नहीं करते हैं, पटकते हैं। थैंक यू पापा, वेरी गुड, ऐसे बोलते क्या है? आप क्या बोलते हैं? चेहरे पे क्या, कैसा भाव आता है? नहीं, आप गुस्सा, आप यू आर एंग्री। और फिर आप जो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेम्बर व्हेन माय अंकल वाज यंग, 21-22 years old, एंड वो बिल्कुल हम लोग के साथ बहुत मस्ती करते थे, मतलब खेल कूद दौड़ा दौड़ी। तो वन डे माय फादर केम एंड ही सेड, डांटे उनको, वो बीए में पढ़ रहे थे, ही गॉट अ गुड स्कोल्डिंग। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, पापा से डर के मारे तो कुछ बोल सकती, कुड नॉट से एनीथिंग, नोबडी हैड द गट्स टू से एनीथिंग। तो वो किए क्या, जब पापा चले जाते हैं कमरे से, उन्होंने क्या किया, अपना अलमीरा खोला और जितनी भी किताबें वो एक बार में ले सकते, उन्होंने पूरी किताबों को ऐसे किया और धड़ाम से जमीन पे। उसके बाद और भी किताबें थी, वो सबको उन्होंने क्या किया, पटकना शुरू किया। एंड माय गॉड, हिज बॉडी लैंग्वेज, हिज एक्सप्रेशन वाज टेरिफाइंग। वी रिमेम्बर, बिकॉज जब पढ़ाते हैं बॉडी लैंग्वेज तो मालूम होना चाहिए कि वो कुछ, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, तो उस पर कोई रिएक्शन होता है ना, तुम कर क्या रहे हो, तुम कहना क्या चाहते हो? हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, तो कुछ कह भी नहीं रहे, हम तो अपने किताब ढूंढ रहे थे। तो दैट वाज वन एग्जांपल, बॉडी लैंग्वेज, जो हम बिना बोले कह सकते हैं। आप सिमेज कॉलेज में आ रहे हैं, सिमेज की यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं, बैग भी सिमेज का ही, बैग मिल गया क्या? नो मैम। जब बैग भी मिल जाएगा तो सिमेज लिखा होगा। तो सड़क चलते, मतलब रास्ते में, पासर्स बाय ऑन द रोड, लोग सब जानेंगे कि ये बच्चा कहाँ पढ़ता है। कैसे, तुमने कहा तो नहीं? बॉडी लैंग्वेज नहीं, आप जो कैरी कर रहे हैं, आप जो यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, इसको कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन। यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग, बट यू आर टॉकिंग अ लॉट, यू आर नॉट टॉकिंग, बट व्हाट यू आर वेयरिंग, तुम क्या पहने हो, क्या कैरी कर रहे हो, that is communicating that you are a citizen. Similarly, if a lawyer is going on the road, you will know that he is a lawyer. How will you know? उनकी यूनिफॉर्म देख के समझ जाएंगे ये लॉयर। कोई डॉक्टर है, एप्रन पहने हुए हैं, स्टेथोस्कोप हाथ में है, तो थोड़ी कहने क्या है डॉक्टर, बट यू विल अंडरस्टैंड दैट ही इज अ डॉक्टर। क्रिकेटर है, किट लेके जा रहे हैं, यंगस्टर हैं, हम लोग भी देखते हैं, तो क्रिकेटर हैं, ये जा रहे हैं, वो थोड़ी कह रहा है, वो हमको लग रहा है, वो हम लोग बोलते हैं कि क्रिकेटर बहुत मेहनत करते हैं आज के दिन में, तो दे आर प्रैक्टिसिंग, तो दे आर कम्युनिकेटिंग विदाउट सेइंग एनीथिंग, सो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन। क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा धीरे धीरे बेस क्लास में आपको इंडक्ट कर रहे हैं हम,
ताकि उस वक्त आपको याद हो जाएगा कि हाँ संजना मैम ने बताया था कि ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है। कई बार हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं टच करके, हैंडशेक, कुछ कहते नहीं है, आप बस बुलाते हैं, हैंडशेक करते हैं। जैसे एक मदर है, स्मॉल चाइल्ड, इन्फेंट, थोड़ा बच्चा, वो रोता है, अगर वो तो कुछ कह नहीं रहा है, मदर क्या करती है, मदर जा करके उसको उठा लेती, वो अपनी माँ का गोद वो पहचानता है। तो इसको कहते हैं टच कम्युनिकेशन, यू कम्युनिकेट बाय टचिंग। तो कोई बहुत अपसेट है, कोई बहुत परेशान है, तो क्या करते हैं, धीरे से आप कंसोल करते हैं, कंधे पे हाथ रखते हैं कि कोई बात नहीं, कोई नहीं, आई एम देयर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा होता है ना। धीरे से आप अफेक्शन शो करते हैं, यू शो योर अफेक्शन, you show your emotions, you show your feelings without saying anything. You are communicating. The communication which happens by just simply touching is called haptics. HAPTICS. लिख लीजिए, सब टेक्निकल कम्युनिकेशन में आ रहा है। HAPTICS, haptics. You communicate by touching. आप जा रहे हैं, कोई पीछे से आपको ऐसे कर रहा है, एक्सक्यूज मी, वो भी नहीं बोल के ऐसे कर रहा है, इट मीन समबडी इज देयर, पीछे कोई है, मुंह पे देखते हैं। आप जब सो रहे होते हैं, योर मदर कम्स और आपके फॉरहेड पे हाथ रखती है, आपको मालूम है कि योर मदर इज देयर, एंड विदाउट सेइंग एनीथिंग you understand, she is showing her affection, she is showing her love. And जो आप कपड़े से, जो आप कैरी करते हैं, उससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, then you are this is called what? So I gave you 4 technical terms. What is language? The higher order, like human beings use language, and all the animal kingdom also communicates. So communication is different. Communicating means without saying I'm communicating. Non-verbal communication बोलते हैं. Verbal, words. Non-verbal, no words. I'm communicating with my facial expressions, gestures, postures, जो कि एनिमल किंगडम भी करते हैं. अपने हाव भाव से आपको इम्प्रेस करते हैं या दिखाते हैं कि आई एम एंग्री, दिखाते हैं कि आई एम हंग्री. So they communicate. We also communicate. We communicate. Sometimes we communicate without saying anything. Like all the emojis. Oh, yes. So that was communication. थोड़े से टिप्स 5 मिनट 10 मिनट का रहेगा, बिकॉज बिजनेस इंग्लिश पढ़ाना है मुझे, BBA AKU फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में बिजनेस इंग्लिश रहता है. लेटर राइटिंग क्या है, एजेंडा क्या है, वही सब चीजें. टेक्निकल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है. फॉर BBA, BCom and BCA, how many students are there for BCom? BCA? The syllabus is the same for BCA, BBA and BCom. And for PPU, कितने लोग हैं? कितने लोग BCA के हैं? BCA में PPU. Yes. Why are you surprised? BCA PPU, BCA BBM, BSc IT. Your world is very interesting. English world is very interesting. क्योंकि उसमें लिटरेचर है, कहानियां हैं, पोएट्रीज है. आप पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा. Literature will help you to be better speakers. Now जो मैंने जो प्रॉमिस किया था वो उस पर हम आ रहे हैं. I said each one will ask me a question so that you know me better.
अभी तो मैंने आपका नाम तक नहीं पूछा है, तो इंडक्शन, तो पहला क्लास तो होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन का क्लास. सो आई एम हैंडिंग ओवर द माइक्रोफोन टू यू, सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस. जो भी क्वेश्चंस आपको पूछना है सिमेंट के बारे में, हम क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, मेरे बारे में कुछ पूछना है, यू कैन आस्क. नहीं पूछना है तो अब खड़े हो जाए, मैं पूछती हूँ आपसे. मैंने पहले कहा था ना, यस मैम. तुम नहीं पूछोगी तो मैं पूछूंगी. चल खड़े जाओ. 4 क्वेश्चन. तुमको मेरे बारे में कुछ नहीं पूछना है, तुमको 3 साल मेरे साथ रहना है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं पूछना है. तुमको पूछना है नहीं? चलो रहना, बस चाय बना सी. अच्छा बैठ ही रहो, उठोगी तो 3 घंटा लगेगा. आस्क इन इंग्लिश. तो आप शर्मा गए हो रहे. व्हाट इज योर नेम? व्हाट्स योर नेम? ये बहुत ही सरल सीधा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है. व्हाट्स योर नेम? कैसे आंसर करेंगे आप? माई सेल्फ संजना सिन्हा, सही है. माई नेम इज संजना, सही है. नो, ये नो बोल रही है. वो बोली फुल नंबर बोलिएगा. माई नेम इज संजना सिन्हा ऐसे बोलना चाहिए, ये सही हुआ ना. तो इसके अंदर में 2 रॉन्ग था. माई सेल्फ रॉन्ग है, माई नेम इज माई सेल्फ रॉन्ग नहीं है. Yes ma'am. Yes ma'am. Wrong. How wrong? Why wrong? Why not right? जब भाई यही तो मेरा Myself wrong क्यों नहीं है? Sorry, myself wrong क्यों है? Yes, ये लड़का एक मिल गया हमको, अच्छा सा लड़का, तो ये हर बार आके आंसर करेगा तुम लोग के. Okay. Why is myself not right? जैसे बोलते हैं माई सेल्फ उत्कर्ष, तो किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए सबसे पहले उसमें एक मेन वर्ब और एक सब्जेक्ट का होना जरूरी है. माई सेल्फ में सब्जेक्ट आ जाता है पर मेन वर्ब नहीं आता है, इसलिए वो माई सेल्फ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और आई है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट. तो अब सब्जेक्ट ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? Yes ma'am. तो इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है ना. Yes. वेरी गुड. माई सेल्फ एंड आई माई सेल्फ, you yourself, she herself, he himself, they themselves. तो ये ग्रामर पोर्शन आ गया. आई नहीं है तो माई सेल्फ कहां से आ गया? गाड़ी नहीं है, बच्चा कैसे यहाँ पर आ गया? यहाँ गाड़ी क्या आ गया? गाड़ी चाहिए ना, सब्जेक्ट चाहिए. आई एम नोन एज संजना सिन्हा, वैसे आई एम नोन एज संजना सिन्हा आप इनफॉर्मल बोल सकते हो, इनफॉर्मली बोल सकते हो, सॉरी. लेकिन माई सेल्फ कभी मत बोलिएगा, दिस इज रॉन्ग इंग्लिश. वैसे फिल्मों में, टीवीज में, सीरियल में बहुत चला रहा है, इट इज इनकरेक्ट. और ये कहाँ से उठाया गया है? द होल सेंटेंस हैज बीन स्नैच्ड फ्रॉम द अमेरिकन्स. उन लोग की आदत होती है अपने को बिल्कुल हाईलाइट, अपने को ग्लोरीफाई करने की आदत होती है. तो वो लोग क्या अपने बारे में क्या बोलते हैं? दे विल इंट्रोड्यूस देमसेल्फ एज आई कॉल माई सेल्फ. और इंडिया में क्या है? 4 चीज छाट लो, माई सेल्फ का ये लो. They manage all this. Otherwise, they will also make a very dramatic entry. बहुत dramatic, बहुत ही अपने को glorify. My country is very strong, the strongest country in the world. तो उनकी बातचीतें वैसी होती है ना. So they will start with, I call myself John Abraham. इसलिए ये बहुत ही पॉपुलर हो गया. तो आई कॉल हटा दिया लो, माई सेल्फ ये अच्छा है. जितना छोटा बोलेंगे उतना अच्छा है. कंसाइज बोलेंगे, प्रिसाइज बोलेंगे, टू द पॉइंट बोलेंगे. इतना लंबा बोलने की क्या जरूरत है? माई नेम इज, कौन बोलता है? तो सीधे माई सेल्फ. बट इन इंटरव्यूज अब बोलेंगे तो इट विल गिव अ वेरी 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 बैड इंप्रेशन. मालूम पड़ जाता है कि द पर्सन डज नॉट नो द करेक्ट
language. So my name is Sanjana Sinha. My name is Sanjana. I am Sanjana Sinha. ये सही ना? Yes, ma'am. मैं तो पूछ रही हूँ because वो कुछ बता रही थी. और अगर मैं बोलूँ my first name is Sanjana and my last name is Sinha, ये सही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Say again. Yes, ma'am. If you want to be speaking technically in your interviews, this is the best option. My first name and my last name. प्रैक्टिस सेशन के लिए हम लोग करवाते हैं. अगर आपके HR अगर ऑस्ट्रेलियन है या अमेरिकन है, they will not know कि सिन्हा या प्रसाद क्या है. अगर हम बोलेंगे my name is संजना सिन्हा, तो बोलेंगे सिन्हा is your first name, संजना is your last name, तो बताना पड़ता है कि no. Because हम लोग को पता है ना कि सिन्हा शर्मा सिंह फैमिली नेम है, बट उनको बताना पड़ता है. So my first name and my last name, my name is संजना सिन्हा. और अगर मैं फोन मेरा फोन आ गया, फोन कहाँ है? कोई अगर मेरा फोन आ जाता है तो फोन उठा करके क्या बोलेंगे हम? My name is बोलेंगे, वही चीज रिपीट करेंगे नहीं ना? बोलेंगे this is Sanjana Sinha from Simaj College. This is official English. आप कभी नौकरी करेंगे, बाहर जाएंगे, आउट ऑफ इंडिया जाएंगे, ये सब कल्चर आप पहले जान लीजिए. जाके तो आप सीखेंगे, इसलिए कि सब लोग वैसे ही बोलेंगे. तो आप एनवायरमेंट, बिहारीज आर वेरी स्मार्ट, जहां एनवायरमेंट देखते वैसे ही हो जाता है. 2 महीने रह के दिल्ली में पूरी भाषा बदल गई, पूरी भाषा बदल जाती है, पूरी स्टाइल बदल जाती है. ये 4 महीने 2 महीने का कमाल हो जाता है. लेकिन कोई बाहर का आके बिहारी नहीं बनता, लेकिन बिहार वाले लोग जहाँ जाते हैं ना, बस वहीं के होके रह जाते हैं. मतलब उनकी भाषा सीख लेते हैं. दे आर वेरी स्मार्ट. Biharis have got that technical skills. If they go to UP, they will talk like an UPite. He is skilled है. So my first name and my last name, my name is Sanjana Sinha. I am Sanjana Sinha. And when I'm on the phone, this is. Did I answer your question? No, ma'am. भैया देखो ना, क्या मेरा आंसर सही है? Next question. Ma'am, tell me something about you. That's what you read us. What you read us? मतलब? आप हमें क्या I will read your face. आप हमें क्या पढ़ाएंगे आगे? पूरी कहानी खत्म हो गई थी. चलो. हम BCA AQ वाले. BCA को बिजनेस इंग्लिश. बिजनेस इंग्लिश. जिसका मैंने आपको 10 मिनट का एग्जांपल दिया. हैप्टिक्स क्या है, ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट आर बिजनेस लेटर्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स, व्हाट इज अ कंप्लेंट लेटर, व्हाट इज एन ऑर्डर लेटर, व्हाट इज अ ट्रायल ऑर्डर, व्हाट इज एन एजेंडा, व्हाट आर मिनट्स ऑफ द मीटिंग, हाउ टू राइट अ प्रपोजल, what are the writing styles in English, how will you create your resume, what is a cover letter, how will you apply for a job. ये सब चीजें आती हैं बिजनेस में, which will be taught in BBA AKU, BCA AKU and BCom professional. वर्कशॉप चलेगा, हर क्लास वर्कशॉप है. मेरे साथ बैठ के आप लेटर लिखेंगे, मेरे साथ बैठ के आप पार्ट्स ऑफ अ लेटर समझेंगे. क्या आपको पता है कितने पार्ट्स ऑफ अ लेटर होते हैं? 1 2 फॉर्मल. ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल समझ गए. दैट इज द टाइप ऑफ लेटर्स ना. लेटर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो कि ऑफिशियल लेटर्स, एंड इनफॉर्मल वो जो आप घर में गार्जियन से बात कर रहे होते हैं या फिर मैंने कहा पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर. देयर आर 14 पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर. तो वगैरह वगैरह चीजों को सामने लेकर के हम आएंगे और आप समझेंगे. एवरी डे विल बी वेरी एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग क्लास. यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू ईच डे.
Yes. कुछ भी नहीं पूछना है, जो पूछ रहे हैं सब ठीक है. A student is smart when he or she asks a question. How long is your teaching experience? I have over 35 years of experience. I started teaching from the age of 22. And I was teaching business. I was teaching personality development. I was a coordinator in a center where I was taking care of executive development programs. So long years of experience. Hey, girls, get up. Okay. Where are you from? Where am I from? आपको क्या लगता है? Can you guess कहाँ से हम? Where am I from? Patna. Yes, I'm from Patna. Born in Patna, brought up somewhere else. Education somewhere else. Where else? Schooling कहीं और हुई. I was born in not Patna. I was born in Gaya, but I stayed in Patna in St. Joseph's Convent High School, which is ICSE school. And after the 7th standard, I studied. My schooling was high school, junior high school, and high school in New York. And after completing my schooling, I came back to India. So what is the big deal? अब मैंने कहा ना, I call myself. तो हमको भी कहना चाहिए ना, I call myself Sanjana. Ma'am, what do you think about this feedback? And if I'm saying you, it seems like I respect. If I'm asking you, if I'm seeing you, क्या बोल रहे हो? Saying you. Saying. Yes, ma'am. कह रहा हूँ. कह रहा. If I'm asking you, ठीक है. There is a difference between ask, No, ma'am. say, I'm not asking. tell, I'm not asking. telling. If I'm telling you. मैम अगर मैं आपको यू कह रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको यू कह रहा हूँ, तो ये लगता है कि थोड़ा सा रिस्पेक्ट कम दे रहा हूँ. नहीं, ये तो, हिंदी में देखो, हिंदी में ना तुम और आप, लेकिन इंग्लिश में कोई आपका कुछ नहीं है. आपका यू भी आप है, आप भी आप है, मतलब आप ही आप है. यू इज यू, और यू इज सिंगुलर एंड यू इज द होल क्लास. Yes. तो इंग्लिश हिंदी में है ना, आप और तुम. हाँ हाँ, अजीब सा लगना. हाँ, यस प्लीज आस्क. What do you think about this bridge batch? I had interviewed some students in the after your exam, and that very evening there was a meeting. So I said this is going to be in for a very good batch. So I said, even when I went down today after meeting you, I said this is the good. We are getting a better batch than last year. Thank you. Thank you. चलिए हाँ तो नहीं किसको पूछना है. The experience was fantastic. Like अपने तरफ में डर है ना, क्या पूछेंगे टीचर्स, क्या नहीं समझ में आएगा, कभी ठीक नहीं समझ में आए तो भी ठीक, मतलब जाना है देखना है, नहीं तो बता देते हैं. जितने भी क्लासेस समझ में हो रहे हैं, आपको एडजस्ट करते करते एक आध हफ्ता लग जाएगा. हर टीचर की मेंटालिटी क्या है, वो कैसे बात करते हैं, उनके बताने का तरीका क्या है. अचानक से ये सिस्टम कंप्यूटर थोड़ी है, एक बटन दबा, एक बटन ऑफ हुआ. तो इट टेक्स टाइम. उसी तरह से when I passed my 7th standard, 7A in St. Joseph's Convent High School, so my father was working in New York, so I went there. So I was pretty sure, मुझे पता था
कि हमको तो वहां पर 4th या 5th में लेंगे लोग, कायदे से उनको मुझे 8 में लेना चाहिए, तो यहाँ हम अगर रह जाएंगे then I am promoted to 8A, 7A के बाद 8A. So I was a little sad कि जाएंगे तो अमेरिका जाने का, तो very good feeling. So I thought that I will be, एक यही उदासी थी कि हमको तो 8 नहीं मिलेगा, और लेकिन 5th या 6th तक हमको जरूर ले लेंगे वो, but 8 definitely not. So when my father took me to a school जिसका नाम था Joan of Arc जूनियर हाई स्कूल, और जो प्रिंसिपल से मिलाया गया मुझे, तो मैं ऐसे स्कूल्स में पढ़ी हूँ, ऐसे स्कूल में जहां पर कोई इंडियन टीचर थी ही नहीं, सारी टीचर थी यूरोपियन और ऑस्ट्रेलियन. मैं बात कर रही हूँ आईसीएसई बोर्ड की जो स्कूल है कुलेरिया के पास, जो है सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल, जो कि आई थिंक 150 इयर्स ओल्ड है वो. तो वहाँ सारी जो टीचर्स थी ना, चाहे तो जर्मन थी या ऑस्ट्रेलियन थी या यूरोपियन थी. हिंदी टीचर, बस हिंदी टीचर थी, वो भी साउथ इंडियन. और संस्कृत टीचर थी कश्मीरी. तो हाँ, she was a very beautiful woman. तो कश्मीरी टीचर फॉर संस्कृत फॉर कश्मीरी टीचर एंड साउथ इंडियन टीचर फॉर हिंदी. तो मेरी इंग्लिश नेचुरली, आई वाज इन स्कूल 8 o'clock till 3 o'clock. उतने अंतराल में वहां कोई हिंदी बोलता ही नहीं था, इसलिए कि किसी को आता ही नहीं था. So I was forced into, we were forced into a place जहाँ हिंदी का कोई नामो निशान नहीं. Everybody spoke English. और एक 4 साल 5 साल का बच्चा जो एडमिशन लेता है और 7 साल उस माहौल में रह जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो उसकी इंग्लिश की लेवल क्या होगी. समझ रहे ना? नो. तो when I went to Joan of Arc junior high school, तो जो प्रिंसिपल थी, she took my interview. Okay, she started talking. Please tell me. वो मेरे फादर से पूछ रही है, what is the daughter's name? So my father said, you can ask her. वो सोची कि मुझे तो इंग्लिश नहीं आती होगी, तो उनके फादर से ही पूछ रहे थे इनके बारे में कि आपकी बच्ची का नाम इंग्लिश में, व्हाट्स योर डॉटर्स नेम. सो वो बोले कि कोई डॉक्टर. वो बोलने ही वाली थी कि मैं जवाब दे दिया, माय नेम इज संजना सिन्हा. वही जो टोन थी, जो मेरी एक्सेंट थी, तो बिल्कुल ऐसे मुझे देखी. वही बोली कि इन विच स्कूल डिड यू स्टडी. मैंने बताया आई वेंट टू दिस स्कूल. दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वर योर सब्जेक्ट्स. मैंने बताया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, लैंग्वेज, लिटरेचर. She was so impressed कि वो सीधे she took me to standard 9. कायदे से मुझे 8 में लेना चाहिए था, तो he told my father, Dr. Prasad, she would be doing just fine. She would be doing just fine in standard 9. And then she took me, she led me to standard 9. जिस आप बैठे हैं ना, huge classroom with a lot of students over there. So she took me there, and then she introduced me to the teacher and the students. बड़े प्यार से मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे और ऑडियंस को देख, मतलब बच्चों को देख के कहा, here is our ambassador from India. Here is our ambassador from India. Oh my gosh. And I thought, is he talking about somebody else? मैं घूम कर किसके बारे में बात. So I thought she was talking about my father, but then my father was not there, no. Only meet our ambassador. Here is our ambassador from India. So that was a fabulous experience, which took me to cloud 9. I was so happy. So America was fun, and I enjoyed myself. But I missed my family. I missed my relatives. I missed the Indian food, and most importantly, I missed my school. Next question. First of all,
I'll introduce yourself. Sorry, myself to you. I'm Ramu Kumar. Ramu Kumar. Yes. I'm from Bar, but currently staying in Patna. Good. My question is, I have only 3 to 2 months in this program, and I do not understand how to, what to read and what not to read. I'm going go out from here at hostels. I don't know. मतलब जाने के बाद मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, टाइम नहीं मिलता है इतने लंबे क्लास का। मिलता है, समझ में नहीं आता क्या पढ़ूं क्या नहीं। कंटेंट बहुत देखिए ब्रिज क्लास क्या है सबके लिए बता रहे हैं। ब्रिज क्लास में अगर आप टेंशन लेके बैठ रहे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लीव योर स्ट्रेस एंड टेंशन इन द क्लासरूम एंड गो। कंटेंट आप जरूरी नहीं कि आप हर क्लास में हर टीचर की हर बात को आप समझ लें, लेकिन किसी टीचर की दो बात भी आप समझ रहे हैं ना, तो धीरे धीरे आपके आप जान रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपके रजिस्टर और आपके माइंड में। डू नॉट टेक एनी स्ट्रेस, टेंशन मत लीजिए। कोई डाउट है, मैंने उस दिन भी कहा था, इफ यू हैव एनी डाउट आप बिल्कुल उस डाउट को वहीं पर क्लियर करें, और जब तक कि कोई होमवर्क नहीं मिल रही तो पढ़ना क्या है, समझना है खाली। Only being present in the class is enough. Being present, being focused. You all are very intelligent human beings. आपके भी तो रजिस्टर होए ना, आप कुछ सुन रहे हैं, कुछ बातें समझ रहे हैं। Your mind is the greatest computer. It is everything is being saved over here. Just go back home, relax, and when you find time, just think about it. Think about the classes. Think about the faculty. Think about the lessons. Just think. Don't do. करना कुछ नहीं। अरे संडे किसी ने होमवर्क दे दिया है, ये पढ़ के आओ, वो पढ़ के आओ, वो पढ़ के आओ, वो कोई देंगे, ब्रिज क्लास में वो देते नहीं। और सबसे बड़ी बात है, यू विल मिस द फन अगर आप टेंशन में आए। टेंशन लेके अगर बैठे तो जब पूरा तब ब्रिज क्लास का मस्ती खत्म हो जाएगा। Try to keep your focus on each class. Keep your eyes, ears open. Listen to what people are saying, and try to connect. ये connection एक दिन दो दिन में नहीं बनता है. This connection takes time. ठीक है? जैसे आपने बहुत हद तक I think 2% जाना मेरे बारे में, मैं क्या पढ़ाऊंगी, मैं क्या नहीं पढ़ाऊंगी, और क्या मेरा क्षेत्र है, क्या नहीं। Before we close down, any question? किसी के पास है क्वेश्चन कोई? चलो। मैम क्या आप बीसीए पीपीयू पढ़ाएंगे? बिल्कुल। बीसीए पीपीयू को 2 इंग्लिश की पढ़ाई होती है। एक पढ़ाई होती है जो आपके सिलेबस में है, इंग्लिश लिटरेचर, रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियां, विलियम शेक्सपियर की कहानियां, मुल्क राजानंद की कहानियां हैं, पोइट्रीज है। एकेयू में बिजनेस इंग्लिश है, पीपीयू में लिटरेचर है, ये बात है। लेकिन जो इन लोगों के कोर्स में होगा वो आप लोग को एड ऑन कोर्स में होगा। समझते हैं एड ऑन कोर्स क्या होता है? तो सारी चीजें जो सिलेबस में नहीं है वो आपके एड ऑन कोर्स में हम लेकर के आएंगे। कम्युनिकेटिव इंग्लिश, ग्रामर, राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी आप, ठीक है? एवरीथिंग विल बी टॉट टू एवरीवन। और किसी का कुछ May I ask a question related with speech competition? And whenever our speech competition will held, we will get the option to choose between 2 or 3 options of a topic, or we will just get a particular topic on which we have to do the. I already have given you the topic. Yes, ma'am. So बस वही एक टॉपिक है। ये टॉपिक मैंने कहा दिया है। मैं आपको एक टॉपिक दे चुकी हूँ, उस टॉपिक पर बहुत लोगों ने हाथ भी उठाया था।
क्या टॉपिक था? कोविड-19 पोस्ट कोविड-19 सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मतलब कि कोरोना के बाद, कोविड-19 के बाद किस तरह से आर्थिक स्थिति लोगों की बिगड़ी और फिर क्या हुआ, ठीक है, इस पे। एंड आई बिलीव आपकी क्लास से कुछ लोग, प्लीज रेज योर हैंड, किसको लेना है? वेरी गुड। नाउ I want the names of students from this class. कितने लोग होते हैं ना, so that we can arrange this program. Yeah, give me the list of students. कोई कोऑर्डिनेट करो ना, इनके नाम नेम्स दे दो। आज तो टाइम अप हो रहा है, लेकिन आप प्रिपेयर योर लिस्ट and you can give it to me, or you can give it to Akanksha. वो मुझे दे देगी, या यू कैन गिव इट टू जस्ट एनीबॉडी, आप दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये स्पीच कंपटीशन के लिए है, और यू कैन गिव इट टू पोदार सर टुमारो। पोदार सर भी आते हैं क्लास में ना? यस सर। अभी आप तैयार तो हो, पहले मेरे पास लिस्ट तो आ जाए कितने स्टूडेंट्स हैं, उसका शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे हम, आपको 2 से 3 दिन टाइम देंगे प्रिपेयर करने के लिए, एंड उसके बाद हम लोग इसको इवेंट को होल्ड करने वाले, ठीक है? चलो, that's it for today.